أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. سورۃ الفاتحہ مکہ میں اتری. آیتیں 7 رکو 1. ترجمہ سورۃ الفاتحہ. سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روزے جزا انصاف کے دن کا مالک. ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر گجب پرکوپ ہوا اور نہ بہکے ہووں کا. تفسیر سورۃ الفاتحہ. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اللہ کی تعریف اور اس کے حبیب پر درود. سورہ فاتحہ کے نام. اس سورت کے کئی نام ہیں. فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبع مثانی، نور، رقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعا، تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجات، سورۃ التفویض، سورۃ السوال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاۃ. اس سورت میں 7 آیتیں، 27 کلمے، 140 اکشر ہے. کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں. شان نزول یعنی کن حالات میں اتری. یہ سورت مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا دونوں جگہ اتری. عمرو بن شرجیل کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام ہو نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے اللہ راضی سے فرمایا، میں ایک پکار سنا کرتا ہوں جس میں اقرا یعنی پڑھو کہا جاتا ہے. ورقہ بن نوفل کو خبر دی گئی. انہوں نے عرض کیا، جب یہ پکار آئے آپ اطمینان سے سنیں. اس کے بعد حضرت جبریل نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اترنے کے حساب سے یہ پہلی سورت ہے، مگر دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سورہ اقرا اتری. اس سورت میں سکھانے کے طور پر بندوں کی زبان میں کلام کیا گیا ہے. نماز میں اس سورت کا پڑھنا واجب یعنی ضروری ہے. امام اور اکیلے نمازی کے لیے تو حقیقت میں اپنی زبان سے اور مقتدی کے لیے امام کی زبان سے. صحیح حدیث میں ہے، امام کا پڑھنا ہی اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کا پڑھنا ہے. قرآن شریف میں امام کے پیچھے پڑھنے والے کو خاموش رہنے اور امام جو پڑھے اسے سننے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تم خاموش رہو. اور بہت سی حدیثوں میں بھی اسی طرح کی بات کہی گئی ہے. جنازے کی نماز میں دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے. قرآن پڑھنے کی نیت سے یہ سورت نہیں پڑھی جا سکتی. سورۃ الفاتحہ کی خوبیاں. حدیث کی کتابوں میں اس سورت کی بہت سی خوبیاں بیان کی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات و انجیل و زبور میں اس جیسی سورت نہیں اتری. ترمذی. ایک فرشتے نے آسمان سے اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا اور 2 ایسے نوروں کی خوشخبری سنائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. مسلم شریف. سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے. دارمی.
सूरह फातिहा 100 बार पढ़ने के बाद जो दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। दारमी इस्तिआजा कुरान शरीफ पढ़ने से पहले औजो बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ भगाए हुए शैतान से पढ़ना प्यारे नबी का तरीका यानी सुन्नत है। खाजिन लेकिन शागिर्द अगर उस्ताद से पढ़ता हो तो उसके लिए सुन्नत नहीं है। नमाज में इमाम और अकेले नमाजी के लिए सना यानी सुभान कल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद आहिस्ता से औजो बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना सुन्नत है। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुरान पाक की आयत है मगर सूरह फातिहा या किसी और सूरत का हिस्सा नहीं है, इसीलिए नमाज में जोर के साथ न पढ़ी जाए। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में लिखा है कि प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सिद्दीक और फारूक अल्लाह उनसे राजी अपनी नमाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी सूरह फातिहा की पहली आयत से शुरू करते थे। तरावीह रमजान में रात की खास नमाज में जो खत्म किया जाता है उसमें कहीं एक बार पूरी बिस्मिल्लाह जोर से जरूर पढ़ी जाए ताकि एक आयत बाकी न रह जाए। कुरान शरीफ की हर सूरत बिस्मिल्लाह से शुरू की जाए सिवाय सूरह बरात या सूरह तौबह के। सूरह नमल में सजदे की आयत के बाद जो बिस्मिल्लाह आई है वह मुस्तकिल आयत नहीं है बल्कि आयत का टुकड़ा है। इस आयत के साथ जरूर पढ़ी जाएगी। आवाज से पढ़ी जाने वाली नमाजों में आवाज के साथ और खामोशी से पढ़ी जाने वाली नमाजों में खामोशी से। हर अच्छे काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह पढ़कर करना अच्छी बात है। बुरे काम पर बिस्मिल्लाह पढ़ना मना है। सूरह फातिहा में क्या क्या है? इस सूरत में अल्लाह ताला की तारीफ, उसकी बड़ाई, उसकी रहमत, उसका मालिक होना, उससे इबादत, अच्छाई, हिदायत, हर तरह की मदद तलब करना, दुआ मांगने का तरीका, अच्छे लोगों की तरह रहने और बुरे लोगों से दूर रहने, दुनिया की जिंदगी का खातिमा, अच्छाई और बुराई के हिसाब के दिन का साफ साफ बयान है। हम्द यानी अल्लाह की बड़ाई बयान करना। हर काम की शुरुआत में बिस्मिल्लाह की तरह अल्लाह की बड़ाई का बयान भी जरूरी है। कभी अल्लाह की तारीफ और उसकी बड़ाई का बयान अनिवार्य या वाजिब होता है, जैसे जुमा के खुतबे में, कभी मुस्तहब यानी अच्छा होता है, जैसे निकाह के खुतबे में या दुआ में या किसी अहम काम में और हर खाने पीने के बाद। कभी सुन्नते मुक्कदा यानी नबी का वह तरीका जिसे अपनाने की ताकीद आई हो, जैसे छींक आने के बाद। तहताबी रब्बिल आलमीन यानी माल की सारे जहां वालों का में इस बात की तरफ इशारा है कि सारी कायनात या समस्त सृष्टि अल्लाह की बनाई हुई है और इसमें जो कुछ है वह सब अल्लाह ही की मोहताज है और अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा के लिए है। जिंदगी और मौत के जो पैमाने हमने बना रखे हैं अल्लाह उन सबसे पाक है, वह कुदरत वाला है। रब्बिल आलमीन के दो शब्दों में अल्लाह से ताल्लुक रखने वाली हमारी जानकारी की सारी मंजिलें तय हो गई। मालिक यौमिद्दीन यानी इंसाफ वाले दिन का मालिक में यह बता दिया गया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, क्योंकि सब उसकी मिल्क में है और जो ममलूक यानी मिल्क में होता है उसे पूजा नहीं जा सकता। इसी से मालूम हुआ कि दुनिया कर्म की धरती है और इसके लिए एक आखिर यानी अंत है। दुनिया के खत्म होने के बाद एक दिन जजा यानी बदले या हिसाब का है। इससे पुनर्जन्म का सिद्धांत या नजरिया गलत साबित हो गया। इय्याका नअबुदु यानी हम तुझी को पूजें, अल्लाह की जात और उसकी खूबियों के बयान के बाद यह फरमाना इशारा करता है कि आदमी का अकीदा उसके कर्म से ऊपर है और इबादत या पूजा पाठ का कबूल किया जाना अकीदे की अच्छाई पर है। इस आयत में मूर्ति पूजा यानी शिर्क का भी रद्द है कि अल्लाह ताला के सिवा इबादत किसी के लिए नहीं हो सकती। वैया का नस्तईन यानी और तुझी से मदद चाहे में यह सिखाया गया कि मदद चाहना चाहे किसी माध्यम या वास्ते से हो या फिर सीधे सीधे या डायरेक्ट, हर तरह अल्लाह ताला के साथ खास है। सच्चा मदद करने वाला वही है। बाकी मदद के जो जरिए या माध्यम है वो सब अल्लाह ही की मदद के प्रतीक या निशान है। बंदे को चाहिए कि अपने पैदा करने वाले पर नजर रखे और हर चीज में उसी के दस्ते कुदरत को काम करता हुआ माने। इससे यह समझना कि अल्लाह के नबियों और वलियों से मदद चाहना शिर्क है, ऐसा समझना गलत है, क्योंकि जो लोग अल्लाह के करीबी और खास बंदे हैं
उनकी इमदाद दरअसल अल्लाह ही की मदद है। अगर इस आयत के वो मानी होते जो वहाबियों ने समझे तो कुरान शरीफ में अयनुनी बिकुव्वतिन और इस्तईनु बिस्सब्रे वसल्लाह क्यों आता, और हदीसों में अल्लाह वालों से मदद चाहने की तालीम क्यों दी जाती। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम यानी हमको सीधा रास्ता चला, इसमें अल्लाह की जात और उसकी खूबियों की पहचान के बाद उसकी इबादत, उसके बाद दुआ की तालीम दी गई है। इससे यह मालूम हुआ कि बंदे को इबादत के बाद दुआ में लगा रहना चाहिए। हदीस शरीफ में भी नमाज के बाद दुआ की तालीम दी गई है। तिबरानी और बेहिकी सिराते मुस्तकीम का मतलब इस्लाम या कुरान या नबी करीम अल्लाह के दुरूद और सलाम उन पर का रहन सहन या हुजूर के घर वाले और साथी हैं। इससे साबित होता है कि सिराते मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता अहले सुन्नत का तरीका है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों, उनके साथी और सुन्नत व कुरान और मुस्लिम जगत सबको मानते हैं। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम यानी रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया। यह पहले वाले वाक्य या जुमले की तफसील यानी विवरण है कि सिराते मुस्तकीम से मुसलमानों का तरीका मुराद है। इससे बहुत सी बातों का हल निकलता है कि जिन बातों पर बुजुर्गों ने अमल किया वही सीधा रास्ता की तारीफ में आता है। गैरिल मकदूबे अलैहिम वलद दौली यानी न उनका जिन पर गजब हुआ और न बहके हुओं का। इसमें हिदायत दी गई है कि सच्चाई की तलाश करने वालों को अल्लाह के दुश्मनों से दूर रहना चाहिए और उनके रास्ते, रस्मों और रहन सहन के तरीके से परहेज रखना जरूरी है। हदीस की किताब तिरमिजी में आया है कि मकदूबे अलैहिम यहूदियों और दौलीन ईसाइयों के लिए आया है। सूरह फातिहा के खत्म पर आमीन कहना सुन्नत यानी नबी का तरीका है। आमीन के मानी है ऐसा ही कर या कबूल फरमा। ये कुरान का शब्द नहीं है। सूरह फातिहा नमाज में पढ़ी जाने या नमाज के अलावा इसके आखिर में आमीन कहना सुन्नत है। हजरत इमाम आजम का मजहब यह है कि नमाज में आमीन आहिस्ता या धीमी आवाज में कही जाए। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।